चिंता ऐसी डाकिनी बाण कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक मरहम लगाए। मेन चीज हम आज हमारे आउटर चीजों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इनर इंजीनियरिंग जो है, जो इनर सेल्फ है, उसके तरफ हम देख नहीं पा रहे। Adhyatmik Vishwavidyalaya is a divine family which aims to establish a new world with the feeling of Vasudeva Kutumbakam through the spiritual knowledge of Sahaj Raj Yoga. Being narrated by the Supreme Father, Supreme Shol Shiva Shankar, and also aims to re-establish the almost extinct Adi Sanatan Devi Devatva Dharma. Nowadays, the young generation is falling prey to various addictions, including drug use, pornography, excessive gaming, social media, and unethical relationships. This deep engagement with mobile technology, computers, and scientific advancements have led to a scientific decline in their ability to focus and engage their intellect. As a result, they are facing issues like mental stress, depression, anxiety, psychosomatic disorders, and sleeplessness. Despite many endeavors since atrocities, corruption, terrorism, interstate and international wars, strife, adultery, sorrows, tensions, and unrest are increasing rapidly at the individual and world level because the human have completely forgotten the spirituality and the Supreme Soul, God Father, has incarnated on the earth in an ordinary human being to teach spirituality in the real sense and is going to transform this hellish world into the heaven, Jannat, Swarg, Ram Rajya very soon. Adhyatmik Vishwavidyalaya has spread around the globe with its course of spiritual centers and Gita schools. The members of AIVV have been conducting free spiritual seminars and webinars not only in India but also all over the world for the propagation of divine knowledge and spiritual upliftment of humanity. So, it's now time to introduce and felicitate our guest, Advocate Mr. PBK Amol Bhai Sir. Sir is an advocate practicing in Supreme Court and also working with Adhyatmik Vishwavidyalaya. We are privileged to have Advocate Mr. PBK Amol Bhai Sir with us today and look forward to benefiting from his extensive experience and invaluable insights. Please join me in welcoming Advocate Mr. PBK Amol Bhai Sir. Requesting sir to please come on the stage for felicitation. Good morning, everybody. Good morning, sir. So today's seminar is regarding self-realization and 8 powers of the soul. Before starting the seminar, we'll do meditation for 2 minutes. Bhagavad Gita chapter number 6, slok number 12 and 13 mentions the unique way of meditation. आप सभी को 2 मिनट के लिए मन को एकाग्र करने की एक्सरसाइज करनी है। सभी को सीधा बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सिर सीधा। आप सभी को घुटने के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। इस पॉइंट पे ध्यान लगाना है, इसको कहते हैं उत्तमांग। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है, ऐसा ध्यान लगाना है आपको। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई फ्रेंड, चाचा, काका, मामा, ताऊ, कोई याद नहीं आना चाहिए। Teachers, parents, family members, detach from the world, completely disconnect from the world. कल किससे झगड़ा हुआ, किसने इंसल्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स हुई लाइफ में, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ I am a point of light situated in the center point of the forehead. एक ही थॉट, बाकी जो भी थॉट आ रहे हैं उन थॉट्स को आपको भगाना है।
एक ही थॉट करना है कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। के लिए हमने जो एक्सरसाइज की माइंड की, रोज हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जिम के लिए देते हैं, योगासन प्राणायाम करते हैं, मैक्सिमम सभी ने बहुत अच्छा किया। मैं मेडिटेशन करते हुए फील कर सकता हूँ वाइब्रेशंस को, और मैं ऑब्जर्व कर रहा था भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 13 में बोला है, जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिसको योग ये शब्द बोला गया है, उसमें आंखें खुली रख के अभ्यास करना चाहिए, आंखें बंद करके नहीं। माँ अपने बच्ची को याद करती है, बच्ची अमेरिका चली गई, तो माँ बच्ची को आंखें बंद करके पालथी मार के बैठ के याद करती है क्या? नहीं ना। माँ बच्ची का नाम ले लेके कविता 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 उसको याद दी है क्या? माँ बच्ची का फोटो एल्बम में ढूंढ कर उसको याद, या माँ कोई सॉन्ग प्ले करती है और उसके बाद अपनी बच्ची को याद करती है? इज इट नेसेसरी? नहीं। या कोई डांस करती है, जो हम गणेशोत्सव में ईश्वर को, गणपति को याद करने के लिए हम जो धाकड़ दिंगा करते हैं, तो ये सारी आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं है। जो कनेक्शन होता है वो नेचुरल कनेक्शन होता है, इसलिए आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ, उनके जितने चित्र और जितनी मूर्तियां आपने देखी होगी, वो डीप मेडिटेशन स्टेज में बैठे हुए, ध्यान मग्न अवस्था में, गहरी ध्यान मग्न अवस्था। क्या उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी बंद आधी खुली है? अर्धोन मिलित नेत्र बोलते हैं उसको, आधी बंद आधी खुली। तो मेडिटेशन भी ऐसी चीज है जो जोर जबरदस्ती या आर्टिफिशियल तरीके से नहीं किया जाता, वो नेचुरल होना चाहिए। और नेचुरल वो तभी होगा, आप कर्म करते वक्त, खाना खाते वक्त, पढ़ाई पढ़ते वक्त भी आप इस स्टेज में रहने का अभ्यास कर सकते हो, अगर आपने फाउंडेशन वैसे डाला। तो आज का जो टॉपिक है सेल्फ रियलाइजेशन एंड 8 पावर्स ऑफ द सोल। जैसे 2 मिनट हमने जो एक्सरसाइज की, माइंड की एक्सरसाइज, इसमें जिनके मन में 2 मिनट में मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे, जिनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, बहुत सारे लोग याद आ रहे थे, अलग अलग चेहरे याद आ रहे थे, ऐसा जिनके साथ हो रहा था, वो समझो कि उनका मन बीमार है, इट इज सिक, इट इज नॉट हेल्थी। तो अगर हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है या स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसको अगर बढ़ाना है तो क्या करना है? इसकी जो एजुकेशन है, आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती है। आज जो आपको एजुकेशन दिया जाता है
उस एजुकेशन को बोलते हैं सेकुलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन, जिससे आपको मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तैयार होंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसको अगर आपको इंप्रूव करना है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी दवाई है, वो आज हम देखेंगे। स्क्रिप्चर्स में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत जीत बन सकता है। The one who has conquered the mind has conquered entire world. हिटलर आया, नेपोलियन बोनापार्ट आया, अलेक्जेंडर आया, सद्दाम हुसैन, कई सारे डिक्टेटर्स आए। इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या वो दुनिया को जीत पाए? नहीं जीत पाए। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे अगर आप अपने मन को वश में कर लेते हो, मन को कंट्रोल कर लेते हो, तो भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। आज हमारी जो सेंसेस है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, कौन सी 5 ज्ञानेंद्रिया? Which are the 5 senses? नाक, कान, आंख, जिह्वा, त्वचा। क्या ये हमारे कंट्रोल में है? क्या हमारा सेल्फ कंट्रोल है इनके ऊपर? आंख को बोला वहां मत देख, गंदी चीज है, लेकिन आंख देखती है वहीं पे। कान को बोला बुरी चीज है मत सुन, लेकिन कान वही जाते हैं। तो हमारे जो सेंसेस है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम मन के भी गुलाम हैं और हमारी इंद्रियों के भी गुलाम हैं। तो भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को ये नहीं पूछा कि ये गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है या शस्त्र अस्त्र कैसे चलाना है। भगवान को अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा चैप्टर नंबर 2 में, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ऑब्स्टिनेट, ये बड़ा बलवान है, इट इज वेरी मच पावरफुल। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? हाउ टू कंट्रोल इट? यह अर्जुन का क्वेश्चन था। अर्जुन धनुर्धारी था, उसके बावजूद अर्जुन का क्वेश्चन यह है कि मेरा मन बड़ा चंचल है और मैं इसे कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई, उसको सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। क्या सिखाया? सेल्फ रियलाइजेशन। क्या होता है सेल्फ रियलाइजेशन? मैंने बोला आपकी आइडेंटिटी क्या है, क्या जवाब दोगे आप? हु आर यू? मुकेश। तो आपने आपका नाम बताया, किसी ने बताया मैं डॉक्टर हूं, किसी ने बताया मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, किसी ने बताया मैं लड़की हूं, इन्होंने बोला मैं लड़का हूं। अपने जेंडर के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताई, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताई। किसी ने अपना रिलीजन बता दिया, मैं मुस्लिम हूँ, किसी ने बोला मैं हिंदू हूँ, और किसी ने अपनी कास्ट बता दी, मैं मराठा हूँ, किसी ने बोला मैं गुजराती हूँ। नेशनलिटी, अपनी लैंग्वेज, इसके आधार से आइडेंटिटी बताई। अर्जुन को भी ये समस्या थी, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस था, और चैप्टर नंबर 1 में वो कंप्लीटली डर गया था, उसके हाथ थर थर कांप रहे थे और बैटल फील्ड से वो भाग रहा था। मैं युद्ध नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है ये हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम नंबर वाइज वी आर ऑल अर्जुन। अर्जुन माना ज्ञान का अर्जन करने वाला, और कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है, कुरु माना कर्म। कुरु ये संस्कृत शब्द है, उसका लिटरल मीनिंग है कर्म, और कुरुक्षेत्र, क्षेत्र माना भूमि, ये बैटल फील्ड है, ये कर्म भूमि है। आज हर एक के जीवन में बैटल है, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आपके प्रोफेसर से, चाहे मैं हूं, चाहे आपकी घर में जो हाउस हो, माँ जो घर संभालती है उसके जीवन में भी बैटल फील्ड है। हर एक के जीवन में बैटल फील्ड है। तो इस बैटल फील्ड में आज हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी,
चिंता जिसको बोलते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी फाड़ कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक मरहम लगाए। डॉक्टर के पास जाते छोटी छोटी बातों पर, तो बोलेगा भाई तेरे को टेंशन है, स्ट्रेस है, बार बार आता है तू, बार बार पैरासिटामोल खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। सबसे मेन चीज, हम आज हमारे आउटर चीजों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इनर इंजीनियरिंग जो है, जो इनर सेल्फ है, उसके तरफ हम देख नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से आज सुसाइडल थॉट्स, मल्टीपल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बात में रोना आना होता है। टॉलरेंस, सहन शक्ति कमजोर हो चुकी है। पावर टू फेस चैलेंजेस, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। उसका मूल कारण क्या है? हम अपनी असली आइडेंटिटी भूल चुके हैं। हम जो अपनी आइडेंटिटी बना रहे वो रिलीजन, क्वालिफिकेशन, जेंडर, अपनी नेशनलिटी, लैंग्वेज, उसके आधार से बता रहे। दैट इज नॉट माई रियल आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन महादेव ने हनुमान को पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हनुमान हूं। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। फिर से पूछा तुम कौन हो? उसने बोला मैं अंजनी सुत हूं। बोला मैंने तुम्हारा वंश नहीं पूछा। फिर पूछा तुम कौन हो? उन्होंने बोला मैं वानर हूं। बोला मैंने तुम्हारी जाति नहीं पूछी। तो हनुमान एकदम दुखी हो जाते, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, मैं कंप्लीट अज्ञात हूं, आप मुझे बताइए मैं कौन हूं। तो जो हमारी असली आइडेंटिटी है ये हम भूल चुके हैं, और वो आइडेंटिटी भूलने की वजह से आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी सुसाइड कर रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट्स में सुना है कभी? कोटा, राजस्थान में कोटा पता है आपको? हब ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। एज पर द न्यूज रिपोर्ट पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किए। तो सारी नॉलेज होने के बाद ये सुसाइड करने का कारण, जिसको कहते हैं आत्महत्या। आत्महत्या मतलब इसका रीजन ये है कि आत्मज्ञान नहीं है। बाकी सारा ज्ञान है लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। जब स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो हम इन चीजों के प्रभाव में आते हैं। और आज ये जो हमारी इमोशनल हेल्थ बिगड़ रही है, सैडनेस, फियर, भय लगता है, या तो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, या छोटे छोटे इश्यूज में हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेशन, पैसिव एग्रेशन, जो अलग अलग हमारे मूड स्विंग हो रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्शन है। देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन आवर इमोशनल हेल्थ एंड सोशल मीडिया। इसकी वजह से लोनलीनेस, सुसाइडल थॉट, मल्टीपल थिंकिंग, रात को नींद नहीं आना, ये सारे प्रॉब्लम से हम ग्रसित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एज पर सर्वे 90% यंगस्टर्स दे आर हैबिचुएटेड एंड एडिक्टेड टू मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। एडिक्शन है। साधनों का, जो साइंस के साधन है, उन साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर, क्या बोल रहा हूं, साधना को भूलकर साधनों के अधीन होना, उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होना, उनके गुलाम हो जाना, ये गलत बात है। एक है साधन और दूसरा है साधना। क्या फर्क है? साधन मीन्स इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, द मीन्स ऑफ द साइंस, और साधना मतलब मन को साधना, मन को कंट्रोल में रखना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। आज हम साधन यूज कर रहे हैं लेकिन साधनों के अधीन हो चुके हैं और साधना को भूल चुके हैं। मेरी कोई लग्जरियस कार है और इस कार को कोई आके हल्का सा ठोक देता है, स्क्रैच हो जाता है छोटा सा,
और मैं मेरे कार से इतना प्यार करता हूं कि मैं उसका मर्डर कर देता हूं। ये साधनों के अधीन होना, एक्स्ट्रा अटैचमेंट, और एक्स्ट्रा अटैचमेंट ये दुखों का कारण है। तो मेरी जो असली आइडेंटिटी क्या है, ये असली आइडेंटिटी समझना बहुत जरूरी है। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। जो न्यूरो साइंटिस्ट है उनका कहना यह है कि ज्यादा इंटरनेट का अगर हेवी यूज है तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी लो है, और इंटरनेट का अगर नॉर्मल यूज है तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल है। तो ये जो साइंस के साधन हम यूज कर रहे हैं, आज जो ये अलग अलग सोशल मीडिया में चीजें देख रहे हैं हम, इससे निगेटिविटी हमारे माइंड में ज्यादा आ रही है या पॉजिटिविटी ज्यादा आ रही है? बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? छोटे छोटे बच्चों की 4th क्लास 5th क्लास, अब जाके कभी दोस्ती करो उनसे और अंदर की बातें निकालो, सारा बता देगा। भ्रष्ट बनती जा रही है। तो ये मॉडर्न साइंस एक तरफ फायदा दे रहा है अगर उसका प्रॉपर यूज किया, और अगर उसका मिसयूज किया तो उससे हमारा जो माइंड है वो क्या बनता जा रहा है? डस्टबिन बनता जा रहा है। हमारे माइंड में रोज गार्बेज एक्यूमुलेट हो रहा है। गांधी जी के 3 बंदर हैं। गांधी जी के 3 बंदर, हियर नो इविल, सी नो इविल एंड टॉक नो इविल। लेकिन हम रोज बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा कहते हैं। चौथा बंदर कौन सा है पता है आपको? आपको पूछ रहा हूं। बुरा मत सोचो, डू नॉट थिंक इविल। हम इन चारों बंदरों को रोज वॉयलेट करते हैं, और उसकी वजह से रोज ये निगेटिविटी का गार्बेज हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। और ये निगेटिविटी का गार्बेज जो है, ये जो एक्यूमुलेट हो रहा है, इसकी सफाई, क्लींसिंग कैसे करनी है, इसकी नॉलेज हमें नहीं है। बॉडी का डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बॉडी का डिटॉक्सिफाई कैसे करना है बता देगा, लेकिन मन का, बुद्धि का और आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है, जिसमें रोज निगेटिविटी का कचरा जमा हो रहा है। घर में अगर गार्बेज जमा होता है तो क्या करती है माँ? 2 बार झाड़ू लगाती है, और जो कूड़ा कचरा है वो कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में। और फिर डस्टबिन घर में रखते हैं या दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है वहां डिस्पोज ऑफ करते हैं, गाड़ी में डिस्पोज ऑफ। तो गवर्नमेंट के पास ये प्लान है कि सोसाइटी के रोड्स को सबको क्लीन करने के, लेकिन गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में ये प्लान्स नहीं है। जो माइंड एंड इंटेलेक्ट में जो कचरा जमा हो रहा है उसको कैसे क्लींसिंग करें। 2024 में वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में जो दुर्घटना हुई, जो दुष्कर्म हुआ, जिसका सारे भारत में सबने विरोध किया कि सर कलम करो, चौराहे में खड़ा करके फांसी की सजा दे दो, कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन क्या कैपिटल पनिशमेंट देने से मानसिकता बदल जाएगी उस व्यक्ति के अंदर की? बदल जाएगी क्या? तो मानसिकता, जो मेंटालिटी है, जो एकदम नीचे की तरफ जा रही है, अनैतिकता, इमोरल वैल्यूज पूरी तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं और मोरल वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं। तो इस मन और बुद्धि की, माइंड एंड इंटेलेक्ट की क्लींसिंग कैसे करनी है? क्योंकि मन का काम है सोचना, इट इज अ थिंकिंग पावर। मन में पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, निगेटिव थॉट्स भी आते हैं, बेस्ट थॉट्स भी आते हैं। बुद्धि क्या काम करती है? बताती है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, जजमेंट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उसको चॉइस करती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है। आज की डेट में हमारी बुद्धि गुड और बैड में क्या चॉइस ज्यादा करती है? बैड को ज्यादा चॉइस करती है, गुड को ज्यादा चॉइस करती है। होती है ना, तेरी अकल क्या घास खाने गई थी उस समय। तो बुद्धि जो है, जो इसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं, वो इंटेलेक्ट इसलिए भ्रष्ट बनता चला जा रहा है, अनराइटियस बनता चला जा रहा है। उसका कारण है फीडिंग। आप उसको क्या फीड कर रहे हो? अगर आपको फिजिकली हेल्दी होना है तो आप अच्छा डाइट लेते हो, ड्राई फ्रूट्स खाओगे,
अच्छी अच्छी चीजें खाओगे जिससे आपका फिजिकली आप हेल्दी होते हो। माइंड को और बुद्धि को हेल्दी करना है, प्योर बनाना है, तो उसके लिए आपको जो फीडिंग है, जो डाइट है, वो अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। आज इंटरनेट पे और मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे क्या परोसा जा रहा है? जो परोसा जा रहा है वो आप खा रहे हैं। गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में सारी पोर्नोग्राफी, सारी ब्लू फिल्म, सारी गंदी चीजें, सोशल मीडिया का गलत कंटेंट सारा उड़ा सकता है, लेकिन नहीं कर रहे। तो आज की डेट में जो कंटेंट क्रिएटर्स, रणबीर अलाहाबादिया, ये जो परोस रहे आपको, या आपकी चॉइस है क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो बुद्धि की ऐसी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है और हमारी माइंड वीक हो रहा है, इंटेलेक्ट की डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो रही है, और उसकी वजह से हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स और लोनलीनेस, इन सारे प्रॉब्लम्स के, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, इन प्रॉब्लम्स के शिकार होते जा रहे हैं। जैसे शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है, वैसे आत्मा की भी इम्यूनिटी पावर होती है, माइंड की भी इम्यूनिटी पावर होती है। तो आज हमारी खुद की इम्यूनिटी पावर वीक बन चुकी है, वीक हो चुकी है। उसकी वजह से छोटी छोटी इश्यूज को हम बहुत बड़ा बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं, छोटी सी बात का पतंगड़ बना देते हैं। छोटी छोटी बात को रोना आता है, सैड हो जाते हैं, फियर आता है, एंगर आता है, अलग अलग इमोशंस हमारी चेंज हो जाते हैं। चाहे आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, वैसे ईक्यू भी होता है, इमोशनल क्वोशेंट। और आपका जो लाइफ का सक्सेस रेट है, ग्रोथ रेट है, उसको मूल, उसका जो कॉज है वो हाई इंटेलिजेंस क्वोशेंट नहीं है सिर्फ जिम्मेवार। अगर आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट हाई है लेकिन ईक्यू कम है, तो आपका सक्सेस रेट इन लाइफ कम ही होगा। अगर आपका ईक्यू हाई है और इंटेलिजेंस क्वोशेंट कम है तो भी चलेगा। ईक्यू माना सेल्फ कंट्रोल, ऐसे इमोशंस जो आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंस, धैर्य। महाभारत में दुर्योधन भगवान को पूछते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं है जो अर्जुन के अंदर है, और जवाब मिलता है कि दुर्योधन को जवाब मिलता है आपके पास धैर्य नहीं है जो अर्जुन के अंदर है। तो ईक्यू जो है, इमोशनल क्वोशेंट, ये कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड है। हमारी जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हाई लेवल की है, उतना हमारा इमोशनल क्वोशेंट हाई लेवल का है। हमारी पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट द थिंग्स, वो हाई लेवल की होगी अगर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हाई लेवल की है। पावर टू फेस द चैलेंजेस, सामना करने की शक्ति, लाइफ में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी हाई लेवल की होगी। तो मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं दुखी हूं, परेशान हूं, समस्याओं में फंसा हुआ हूं। तो मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? क्या आंसर है? आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूं, ये मेरी असली आइडेंटिटी है जो मैं भूल चुका हूं। आप बोलेंगे आत्मा तो दिखती नहीं है, बॉडी विजिबल है, तो हम कैसे माने? मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये फैन चल रहा है, ये ट्यूबलाइट चल रहा है, बल्ब चल रहा है, तो क्या आपने इलेक्ट्रिक करंट जो वायर से फ्लो हो रहा है इसको देखा है आंखों से? नहीं देखा है, लेकिन आप फिर भी उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे, थ्योरीज के आधार पे। वैसे ही आत्मा को भी अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है। जो चीज दिखती नहीं है, जो जितनी चीज सूक्ष्म होती है उतनी पावरफुल होती है। मैंने बताया कि बच्ची अमेरिका में, माँ यहाँ बैठी है और वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है, और वीडियो कॉलिंग फेल है, नेटवर्क फेल है मोबाइल का, और माँ सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने बच्ची को याद करती है और बच्ची को टचिंग हो जाती है अमेरिका में। पॉसिबल है, आप अमेरिका में हो,
आपकी माँ यहाँ याद कर रही है आपको, पॉसिबल है कनेक्शन? आपको बोल रहा हूँ, आप वहाँ देखो, पॉसिबल है कनेक्शन होने का। माँ जो याद कर रही है आपको, टचिंग हो सकता है आपको? यू आर इन अमेरिका, पॉसिबल है या नहीं? यस, पॉसिबल है। तो ये वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की पावर है, ये वाइब्रेशंस हमारे सबसे निकल रहे हैं। तो वाइब्रेशन की जो शक्ति है वो सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। यहाँ बैठी हुई माँ पूना में बैठी हुई है और अमेरिका में बैठे हुए अपनी बच्ची को याद कर सकती है, बच्ची को टचिंग होती है, उसकी आती है और बोलती है माँ ने मुझे याद किया होगा। ये मोबाइल की जो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन है वो भी फेल हो जाता है, लेकिन एक टेलीपैथी जो है वो अध्यात्म में भी है, वो है ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। तो ये पॉसिबल तभी है जब हमारे माइंड के थॉट्स, हमारी मन और हमारी बुद्धि, इसमें प्यूरिफिकेशन है, प्योर है, थॉट्स प्योर है, शुद्ध विचार, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी है, शुद्धता है। माँ अपने बच्ची के प्रति सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, उसकी वजह से वो ट्रांसफर हो गया, नहीं तो आपका नहीं होगा ट्रांसफर। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखा है क्या मूवी? उसमें शाहरुख खान मन में बोलता है पलट जाती है। तो पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, लेकिन अगर माइंड और इंटेलेक्ट से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, जो थॉट्स है, उसमें अगर प्यूरिटी है तो ही पॉसिबल है। तो मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? मेरी असली आइडेंटिटी है आई एम अ सोल दैट कैन बी एक्सपीरियंस। फिजिकल बॉडी जो है, इसको मैं सब कुछ समझ बैठा, ये प्रॉब्लम है। आज मैं व्यक्तियों के पीछे भाग रहा हूँ, ये फ्रेंड, ये रिश्तेदार, इनके कनेक्शन में मैं आऊंगा, ये लोग, ये ग्रुप पर्टिकुलर, ये क्लब ज्वाइन करूंगा, इन लोगों से मिलूंगा, ये लाइक माइंडेड पीपल है तो मैं सुखी बन जाऊंगा या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। व्यक्तियों के पीछे भाग रहा हूँ, साधनों के पीछे भाग रहा हूँ। मैं ये ऑटोमेटिक गियर वाली बाइक ले लूंगा, 4 व्हीलर ले लूंगा, अभी मेरे पास 2 BHK में 3 BHK या 4 BHK ले लूंगा पूना में, प्राइम लोकेलिटी में। तो ये सारी चीजों के पीछे भाग रहे, उसके बावजूद आज मनुष्य परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। उसका कारण है कि जो सोल कॉन्शियसनेस है वो उसकी डिग्रेड होती जा रही है और बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो मेरी असली आइडेंटिटी है, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। अभी बोलने से होगा या एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? एक्सपीरियंस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। किसी को पता है आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? कौन से स्थान पे? नाक पे रहती है, हार्ट में रहती है, कहाँ रहती है? यहाँ पे। कोई प्रूफ? आपका कहना है यहाँ पे, क्या प्रूफ इस बात का? आत्मा सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रूकुटी के बीच में यहाँ पे रहती है और इसका प्रूफ है भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश संहिता। भ्रूकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। प्राण शक्ति को हो, एनर्जी को हो, कॉन्शियसनेस को हो, चेतना को हो, ये जो है विदाउट आत्मा ये शरीर क्या है? डेड बॉडी। डॉक्टर क्या बोलते हैं? डेड बॉडी को लेकर जाइए। अरे ब्रेन तो उधर ही है शरीर में, तो क्या चला गया जिसकी वजह से डेड बॉडी हो गई? जो चली गई वो आपकी असली आइडेंटिटी है, वो आप हो और वो इमॉर्टल है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, इमॉर्टल है। जैसे मैं ये कपड़े बदलता हूं वैसे आत्मा जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती है, शरीर बदलती है, पुनर्जन्म लेती है, रीइंकार्नेशन थ्योरी। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। तो जो मेरी असली आइडेंटिटी है उसे कैसे रियलाइज करना है, उसे कैसे एक्सपीरियंस करना है? आत्मा भ्रूकुटी के बीच में यहां रहती है। उसका और प्रूफ है कि
भारत की जो कन्या माताएं है, भारत की जो लेडीज है, वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। ये आत्मा की टिकने की निशानी है। द्वापर युग से जो ऋषि मुनि है, उनको ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो मनुष्य को ये भान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है। इसके लिए ये ट्रेडिशन शुरुआत हो गई बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। लेकिन आज हम उसके स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है करके। तो अभी ये पता चला आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा इनविजिबल है, लेकिन उसको याद कैसे करें? जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में छोटा सा स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आपको इमेजिन करना है एक पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ, और आप कंसंट्रेशन करो, अभ्यास करो, आपको पता चलेगा कि यहाँ ट्रिमेंडस पावर है। आप अभ्यास करोगे तो एक्सपीरियंस करोगे। तो जैसे शरीर का भोजन है, वैसे आत्मा का भी भोजन है। देयर इज अ फूड ऑफ द सोल। आत्मा का भोजन क्या है, कोई बताएगा मुझे? यस, क्या है आत्मा का भोजन? मेमोरीज। मेमोरीज ये भोजन है या और कुछ अलग बोलना चाहते हो आप? पीस। पीस चाहिए मुझे, शक्ति मुझे चाहिए, तो मैं शक्ति खाता नहीं हूं, मैं भोजन खाता हूं, रोटी सब्जी दाल चावल। वैसे मुझे शांति चाहिए, तो भोजन क्या लेना है मुझे? मेडिटेशन, योगा। अभी योग, मेडिटेशन का उचित शब्द है ध्यान। ध्यान से भी एक्यूरेट वर्ड है योग। और योग मतलब योगा नहीं, योगासन और प्राणायाम नहीं है। योगासन और प्राणायाम ये फिजिकल एक्सरसाइज है, ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। योग का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, किसी को पता है? हाँ, योग का लिटरल मीनिंग, योग का अर्थ क्या है? योग इस शब्द का किसी ने बताया? ध्यान नहीं, लिटरल मीनिंग, वे ऑफ लाइफ, एकाग्र करना। योग का अर्थ है, लिटरल मीनिंग है कनेक्शन, यूनियन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, द कनेक्शन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल। ये जो कनेक्शन है इसको योग कहते हैं। लेकिन आज हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं कि योगासन और प्राणायाम ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया, दैट इज डिफरेंट वन। वो प्राचीन राजयोग क्या है वो हम देखेंगे। पहले हमने देखा योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आत्मा मतलब हम सभी, हमारी बैटरी, छोटी बैटरी है, किसी की छोटी है, किसी की थोड़ी बड़ी है, उसकी कॉन्शियसनेस उसकी पावर के अनुसार। और सबकी बैटरी अभी डिस्चार्ज हो रही है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो रोज चार्जिंग लगाते हैं, तो आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है उसका रीजन क्या है, किसी को पता है? भोजन तो मैंने बता दिया, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग, स्पिरिचुअल नॉलेज, और ये भोजन है। अभी मैं इस बात पे आ रहा हूं कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो आत्मा ये छोटी बैटरी है, उसका कनेक्शन अगर उसको चार्ज करना है, बैटरी चार्जिंग जो है, अगर चार्ज करनी है बैटरी को, तो आप बड़ी बैटरी से कनेक्शन करोगे या तो आप जनरेटर से कनेक्शन करोगे। लेकिन आज हम गलती क्या कर रहे हैं, जनरेटर जो है वो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम अथॉरिटी है, उसको भगवान को हो, ईश्वर को हो, शिव को हो, अल्लाह को हो, गॉड को हो, वो सुपर कॉन्शियसनेस है, उसको शिव को हो। तो दोनों का जो कनेक्शन है उसको कहते हैं योग। लेकिन आज हम गलती कर रहे हैं कि हम अपनी बैटरी का कनेक्शन ऐसे से करते हैं जिसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है। हम उसको याद करते हैं, खाना खाने बैठते हैं वही याद आता है, पढ़ाई पढ़ने पढ़ते हैं वही याद आता है। तो कनेक्शन हम ऐसे से कर रहे हैं जिसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, मेरी भी बैटरी डिस्चार्ज, इसकी भी डिस्चार्ज,
दोनों कनेक्शन तो ड्रेन हो जाएगी बैटरी, है ना। तो प्रॉब्लम यहां है। तो कनेक्शन किससे होना चाहिए? हाईएस्ट से कनेक्शन होना चाहिए। जो शिव है या सुप्रीम सोल है, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उससे अगर कनेक्शन करेंगे, ही इज द ओशन ऑफ द नॉलेज, ही इज द ओशन ऑफ द लव। वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। हमको अगर पीस, हैप्पीनेस, प्यूरिटी, हमको अगर नॉलेज चाहिए तो हमें उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। उसके पास 100% है वो। लेकिन आज हम गलती कर रहे हैं। आज हम जो कनेक्शन कर रहे हैं वो रॉन्ग कनेक्शन कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। रॉन्ग नंबर डायल करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण क्या है? जैसे कंप्यूटर है, उसमें जो मॉनिटर है वो हार्डवेयर है, जो सीपीयू है वो ब्रेन है, और सीपीयू भी अवेलेबल है, मॉनिटर भी है, बाकी सारा हार्डवेयर है, रैम है, रोम है, जो कुछ भी है, हार्ड डिस्क है। लेकिन उसके बावजूद अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है तो क्या कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो आत्मा है, और ये हार्डवेयर है सारा का सारा। द बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। किसी को पता है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इस 5 एलिमेंट से बॉडी बनी है। बॉडी इज अ मैटर और आत्मा इज एनर्जी। ये जगत दो ही चीजों से बना हुआ है, मैटर और एनर्जी। ये मैटर है और एनर्जी आत्मा है, प्राण शक्ति, कॉन्शियसनेस। हमें बॉडी की नॉलेज है मेडिकल साइंस को आज की डेट में, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। सुंदर दिख रहे तो हम सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है लड़कियां, और लड़के ट्राइसेप बाइसेप अच्छे बनाने के लिए जिम में जाते हैं। तो फिजिकल ग्रोथ के रिलेटेड हम कंप्लीटली कॉन्शियस है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के लिए कॉन्शियस नहीं है। उसकी वजह से आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सुसाइड कमिट कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बिकम, हाउ टू इंप्रूव द मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। प्रॉब्लम वहां है। तो बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण क्या है? कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया तो सिस्टम काम नहीं करेगा। उसको वायरस कहो या अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में बोलते हैं कि कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। ये कली राक्षस को हो या वायरस को हो, ये एक ही चीज है। और भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। मैंने आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए आत्मा का फूड बताया आपको, द फूड ऑफ द सोल, मेडिटेशन, और दूसरा बताया स्पिरिचुअल नॉलेज। और आत्मा के जो 3 एनिमीज है, देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल, जिससे आत्मा बैटरी डिस्चार्ज होती है। आत्मा का भोजन लेने से बैटरी चार्जिंग होती है, और इन 3 शत्रुओं की वजह से और 3 वायरस जो है उसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। वो 3 वायरस कौन से? भगवत गीता से त्रिविध से नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले हैं, या आत्मा के शत्रु है। देयर आर एनिमीज ऑफ द सोल। द फर्स्ट वन इज द काम, होशियार है। सेकंड क्रोध, और थर्ड ग्रीड। काम का अर्थ क्या है? काम मतलब कामना, कामना मतलब डिजायर। और डिजायर्स में जो सबसे पावरफुल डिजायर है, जो सबसे बड़ा मुखिया है एनिमीज का, सोल्स के जो एनिमीज है उसका मुखिया है वो लस्ट है। आज जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे, निर्भया कांड हुआ 2012 में दिल्ली में, इतना क्रूएल तरीके से, इतना हीनेस क्राइम था, तो उसमें जो सबसे नंबर 1 5 वाइसेस जो है उसमें लस्ट, डिजायर, सेक्स डिजायर, ये सबसे महाशत्रु है। भगवत गीता बोलती है काम महाशत्रु है, इज द बिगेस्ट एनिमी। जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासुदम। इस शत्रु को मार डाल, इसको हत्या कर, किल इट। लेकिन आज जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, आज इन्हीं चीजों में बुद्धि लगी रहती है, जबकि जो मोरल वैल्यूज है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे।
उसकी वजह से हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज डेवलप होने की जगह हमारे अंदर डेमोनिक ट्रेड्स, एक शैतान हमारे अंदर तैयार हो रहा है। उसका कारण ये है कि स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज कैसे करनी है, कैसे सोल कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, उसकी नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो बैटरी चार्जिंग कैसे होती है आत्मा की? आत्मा का भोजन लेने से, स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन, और फिर डिस्चार्ज होती है लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। चौथा है 5 राक्षस है, वैसे 5 वायरस है। चौथा है अटैचमेंट और 5वां है अहंकार, इगोइज्म, घमंड। अटैचमेंट मतलब लगाव झुकाव की बीमारी रहती है ना, एक्सेसिव अटैचमेंट। अगर शादी हो गई और पति का पत्नी से एक्स्ट्रा अटैचमेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पता है आपको? रिजल्ट, किसी भी चीज से एक्स्ट्रा अटैचमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस ये है टेम्परामेंटल डिफरेंसेस और डाइवोर्स, ये कॉन्सिक्वेंसेस। तो जहां भी अति की अटैचमेंट, ये दुख का कारण है, ये मिजरी का कारण है, तो ये हमारे आत्मा के शत्रु है। तो आत्मा भोजन में पहला है योग। योग मीन्स कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। अभी राजयोग की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राजयोग? भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया, और राजयोग का जो मीनिंग है, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की असली वह है। तो आज हम योगासन और प्राणायाम को राजयोग समझ बैठे। तो सेल्फ रियलाइजेशन की जो टेक्निक है, उसमें सबसे पहली चीज मैंने बताई, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। द सोल इज सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। और अगर आपको आत्मा का भोजन देना है, आज इन समस्याओं से लड़ना है जो मॉडर्न एज में आज सभी लोग जिससे जूझ रहे, अगर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको सबसे अच्छा समय कौन सा है मेडिटेशन का? अर्ली मॉर्निंग, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय, प्रातः समय 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भगवत गीता कहती है, जो योगी पुरुष अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहता है, वश में रखना चाहता है, अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना चाहता है, अपनी सेलिब्रेसी की पावर बढ़ाना चाहता है, माइंड, इंटेलेक्ट और कर्म के अंदर शुद्धता लाना चाहता है, क्योंकि साइंस भी इस बात को मानता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसमें कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय अगर आप मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए 4 बजे उठ जाओ। कितने बजे सोते हो वैसे आप? 4 बजे सोते हो? उल्टी गंगा बह रही है, मतलब हमारे जो 12 बजे, 12 से आगे कोई है 1, 2, अब जल्दी सो जाते, अच्छे बच्चे 10 बजे, 2 बजे, 11:30। तो आपको बता रहा हूं मैं, रात के 9:30, 10 बजे के बाद से 12:30, 1 बजे तक का जो समय है, वो शास्त्रों के अनुसार उसको राक्षस काल बोला गया है। उस समय जो जगते हैं, उनके अंदर फिर राक्षसियत और हैवानियत, डेविल सारे आते हैं। उनकी मन, बुद्धि, उनका एटीट्यूड भी वैसे ही बनता है। मैंने आपको बताया सबसे अच्छा समय कौन सा है सेल्फ रियलाइजेशन का। 4 बजे उठ जाओ, 2 बजे बहुत होगा नहीं आपसे, 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ के लगातार 6 मंथ्स अगर आप हाफ एन आवर डेली कंसिस्टेंटली विदाउट एनी गैप अगर आप प्रैक्टिस करते हो, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, प्रिय वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति, कोई भी याद ना आए, और उस समय सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार। क्योंकि हमें आदत लगी हुई है मल्टीपल थॉट्स की, हमारे माइंड को। आप 10 मिनट बैठ के देखिए, आपके मन में इतने विचार आएंगे अलग अलग।
तो अगर आप सारे विचारों को हटाकर एक ही थॉट लो कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, तो फायदा ये होगा कि आपके अनेक थॉट से, मल्टीपल थॉट से आपकी एनर्जी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। जितने थॉट ज्यादा, अगर किसी व्यक्ति के मन में 1 मिनट में 50 थॉट्स आ रहे, तो समझो वो सबसे ज्यादा बीमार है, विकृत मन है उसका। अगर जिसके माइंड स्टेबल है, उसके मन में कम से कम थॉट्स आएंगे। तो जितने कम थॉट्स, उतनी थॉट्स का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा होगा। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो आप? क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। आपका नाम क्या है? अंबिका। यू आर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। आप बताओ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्पिरिचुअलिटी में काम में आता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जो कर्म करते हैं वैसे हमें रिटर्न मिलता है। हम दूसरों के प्रति जेलसी, हेट्रेड, ईर्ष्या, द्वेष, निगेटिविटी अगर डाल रहे तो वो रिटर्न आएगा आपके पास। वो बॉल फेंका, वो बॉल को टकराएगा, बाउंस बैक होकर आपके पास आएगा। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। कई बार आपने देखा रहेगा, आप किसी को याद कर रहे हो और उसकी मोबाइल पे रिंग घंटी बजती है। देखो, अनुभवी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये सारा ये वाइब्रेशंस का कमाल है। हमारे मन के संकल्पों में जितनी ज्यादा प्यूरिटी है, उतना ज्यादा आपके थॉट्स ये फुलफिल हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। ये पावर आपके अंदर है। लेकिन हम बाहर की दुनिया में देखते हैं कि हमें जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये दूसरों की वजह से चल रहे। हम परचिंतन करते रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी कहती है परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये कबीर का दोहा है कि हम बाहर की दुनिया में बोलते हैं कि सब बुराई है, सब गंदगी है। अरे गंदगी तो मेरे अंदर है। भगवत गीता बोलती है आत्मेव आत्मना बंधु, आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। तो हमारी खुद की जो वीकनेस है उसकी वजह से हम दुखी है, प्रॉब्लम्स हमारे पास है। सो द सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, द सोल इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। और आत्मा की जो शक्तियां है, पावर्स है, उसको हम भूल गए। एक महाभारत में आपने एक पिक्चर देखा रहेगा, एक रथ है, उसमें अर्जुन बैठा हुआ है, श्री भगवान है। कठोपनिषद नामक स्क्रिप्चर है। उस कठोपनिषद में ये बोला है आत्मा नथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। मीन्स आत्मा पैसेंजर है, रथी, शरीरम रथमेव च। शरीर गाड़ी है, व्हीकल। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। ड्राइवर अगर शराब पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। वैसे हमारी बुद्धि अगर भ्रष्ट बनी हुई है तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो गलत होगी। और उसकी वजह से लाइफ में, चाहे करियर करो, चाहे लाइफ में जो भी सक्सेस है, उसका ग्राफ आपका नीचे चला जाएगा। वो सक्सेस का रेट बहुत कम होगा। तो बुद्धि तुम सारथि विद्धि मन प्रग्रह में वच, मन लगाव में। इंद्रियानी हयानाऊ, और इंद्रिया घोड़े है। ये मन रूपी लगाम जो है ना, ये ढीला पड़ चुका है। ये इतना भागता है कि हमारे बस में नहीं है। ये जो सूक्ष्म बातें हैं, इसको न समझने के कारण आज हम इन प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन का टेक्निक मैंने आपको बताया, मैंने आत्मा का भोजन बताया आपको। जैसे पेड़ है, पेड़ को अगर पानी डालना है तो पेड़ को पानी कहाँ डालते हैं? रूट्स को, जड़ों को या बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। कोई मूर्ख होगा जो पत्तों को, टहनियों को पानी डालेगा। आज वही गलती हम कर रहे हैं। शरीर वृक्ष है और आत्मा बीज है उसका। यहाँ जरा भी फोकस नहीं करते, यहाँ जरा भी टाइम नहीं देते। 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा भी हम नहीं देते। सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या निगेटिव और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं?
नेगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं, तो हमें 24 घंटे में 1 घंटा अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल क्लासेस मिलेंगे। आप रोज आधा घंटा 1 घंटा कानों से सुनोगे, आंखों से अच्छी चीजें देखोगे, तो आपके माइंड और इंटेलेक्ट में अच्छी फीडिंग होगी, तो पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे और नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स भाग जाएंगे। ये क्लींसिंग की प्रोसेस है। तो इसीलिए मैंने बोला आत्मा का भोजन एक तो ज्ञान और दूसरा है ध्यान। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी माइंड एंड इंटेलेक्ट में जो मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को आप भगाकर एक थॉट में कॉन्सेंट्रेट करोगे, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। तो उससे आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते थे, सनरेज आ रहे और नीचे एक पेपर रखा, वो बर्न होता है क्या नहीं। बीच में अगर कॉन्वेक्स लेंस पकड़ लिया तो वो रेज सारे कॉन्सेंट्रेट हो जाते और वो नीचे रखा हुआ पेपर बर्न हो जाता है। लेकिन अगर ये लेंस हटा दिया तो नहीं होता है। वैसे ही हमारे माइंड में जो मल्टीपल थॉट्स है, मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आंखें खुली रख के अभ्यास कीजिए। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर ये अभ्यास आप 6 महीने लगातार कंसिस्टेंटली विदाउट एनी गैप सवेरे करते हो, तो यू विल एक्सपीरियंस दैट देयर इज अ ट्रिमेंडस एनर्जी। थर्ड आई आपका एक्टिवेट होने लगा है। शिव शंकर भोलेनाथ को तीसरा नेत्र दिखाया है, त्रिनेत्र। दिस इज द थर्ड आई ऑफ विजडम। तो ये सबके अंदर है, सिर्फ एक्टिवेट करने की बात है। इसको जो 7 चक्र होते हैं, नाम सुने आपने? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र। इस चक्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आज्ञा चक्र। ये उत्तमांग है। राजा दरबार में हमेशा टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? तो आत्मा इस शरीर का राजा है, कंट्रोलर, टॉप में बैठता है। उसके नीचे ये आंख, कान, नाक, ये सारे मंत्री, नौकर चाकर, ये प्रजा। तो राजा का हुकुम आज प्रजा मान नहीं रहे। मुझे डॉक्टर ने बोला कि डायबिटीज हो गया है, कि आपको गुलाब जामुन रसगुल्ला नहीं खाना है, और मैं आते ही इन्होंने मेरे लिए बोला, सर मैं रसगुल्ला लेके आया हूँ, और सामने रखा मेरे। तो मुझे डॉक्टर की बात याद आई, लेकिन उसी समय मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरी जिह्वा लज्जायमान हो गई। मैंने हाथ आगे किया, जिह्वा भी इंद्रिया, मुंह भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, और वो रसगुल्ला उठा के मुख में डाल दिया। तो मेरा जो राजा है, उसका हुकुम मेरे ये नौकर चाकर इंद्रिया मान रहे हैं कि आज की डेट में उसकी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, डिसोबे कर रहे हैं। उसका कारण ये है, ये जो मेरा राजा है ये कमजोर हो चुका है, इसलिए उसके ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। ये आत्मा जो राजा है वो टॉप में बैठा हुआ है, उत्तमांग कहते हैं इसको। तो जितना आप आपके माइंड और इंटेलेक्ट, आपका माइंड और इंटेलेक्ट अगर आप सवेरे से लेकर रात तक आपने एनालिसिस किया, रात को सोते समय आप अपनी प्राइवेट डायरी में गुप्त रखो सीक्रेट, उसको छुपा के रखो अलमारी में, पेरेंट्स के किसी के नजर में ना आए। उसमें सवेरे से लेकर रात तक, जैसे व्यापारी रात को सोते समय अपना चोपड़ा खोलता है और उसमें नफा नुकसान सारा चेक करता है, वैसे सवेरे से लेकर रात तक जो जो बत्तियां की, जो निगेटिविटी माइंड में आई, निगेटिव थॉट्स कितने आए, किसके प्रति आए, माइंड की मेरी स्टेज कैसी रही, प्यूरिटी, सेमी प्योर, इम्प्योर, 3 स्टेजेस है। तो आप सेल्फ एफर्मेशन, खुद ये कचरा जो है ये डंप आउट, ये इसको डिस्पोज ऑफ कर दो। आप जिसको भी मानते हो, इष्ट को, परमात्मा को, उसको एड्रेस करके लेटर लिखो 1 पेज का, और रोज जो भी गलतियां है, निगेटिविटी है, उसको दे दो। जब आप इसको खाली करोगे रोज के रोज, जब उसको निकाल दोगे, तो आप देखो, कभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, आप अपने मित्र को बताते हो, हल्कापन होता है ना, आपको थोड़ा रोना भी आता है, लेकिन हल्कापन होता है। तो मित्र तो फिर भी गद्दार निकल सकता है, धोखेबाज निकल सकता है, किसी दूसरे को बातें स्प्रेड भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। इसलिए एक ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो तो निष्काम कर्म योगी है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है किसी चीज का। तो उससे कनेक्शन जोड़ो, उसको मित्र बनाओ, खुदा दोस्त कहा गया है।
उसको अपना फ्रेंड बनाओ और उसको सारी चीजें शेयर करो। तो मैंने आपको 3 सॉल्यूशन दिए। द फर्स्ट वन इज स्पिरिचुअल नॉलेज, द फूड ऑफ द सोल। दूसरा है मेडिटेशन, योग, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। राजयोग की व्याख्या बताई, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिरियम करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। अभी व्हाट इज सुप्रीम सोल, परमात्मा क्या है? परम मीन्स श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ, सुप्रीम, सुपेरियर। तो आप बोलेंगे उससे कनेक्शन जोड़े कैसे, उसको तो हमने देखा ही नहीं। जिस चीज को देखा नहीं उससे कनेक्शन जोड़ना पॉसिबल नहीं है। एज पर स्पिरिचुअलिटी वो जो है वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, निराकार है। 2 चीजें, निराकार और साकार। जिसको आकार नहीं है, जैसे हमारी आत्मा निराकार है, विदाउट बॉडी हमारी आत्मा का हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और विदाउट सोल बॉडी काम नहीं कर सकती। इन द सिमिलर मैनर जो परमात्मा है, जिसको हम बोलते हैं ऊपर वाला, उसको नीचे आकर कोई बॉडी धारण करनी पड़ेगी, तभी वो हमें नॉलेज दे सकता है। सदगुरु बनके वो पढ़ाई पढ़ा सकता है स्पिरिचुअलिटी की। इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो परमात्मा कभी टीचर बनके जब आएगा तभी वो स्पिरिचुअल नॉलेज देगा। और आज दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। इतना अति में बढ़ता चला जा रहा है कि मनुष्य अंदर से भी अपने आप को, उसकी मन और बुद्धि, उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है और बाहर की दुनिया में भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऐसे में वो जो इनकॉर्पोरियल फॉर्म है, जिसको सभी धर्मों वाले मानते, मुस्लिम्स भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सभी धर्मों वाले उसको मानते हैं। हिंदू कैसे मानते हैं? आप शिवलिंग की पूजा करते हो, आपने कभी सोचा शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों है? बाकी जितने भी देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, हनुमान जी और गणेश जी को छोड़कर। लेकिन उनको भी सिर्फ सूंड हाथी की लगा दी, बाकी तो सारा शरीर मनुष्य जैसा है। लेकिन शिवलिंग है जिसकी पूजा करते हैं, उसको ऐसा आकार क्यों बनाया? वो किसका सिंबॉलिकल फॉर्म है? क्या सिंबलाइज करता है? सोल से कनेक्शन है। भगवत गीता कहती है कि मैं ज्योति स्वरूप, आई एम अ फॉर्म ऑफ लाइट। तो इस ज्योति के आकार को कैसे पूजा करें? तो भक्तों ने उसकी उपासना करने के लिए उसको ये बड़ा आकार दे दिया। भगवत गीता कहती है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। और क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं, चर्च में जाते हैं, कैंडल की लाइट के ऊपर ध्यान लगाते हैं। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड, उंगली ऊपर कर देते हैं, वो बोलते गॉड इज लाइट। और जो मुस्लिम्स है, प्रॉफेट मोहम्मद बोलते हैं खुदा नूर है, खुदा रोशनी है, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। वो भी इस बात को मानते हैं। क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। गुरु नानक जी, आपने देखा है गुरु नानक जी उंगली ऊपर करते थे, एक ओंकार निराकार अकार मूर्त निर्भय, सिख धर्म जिन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो ये सभी रिलीजियस लीडर्स, संस्थापक इस बात को मानते हैं कि वो ऊपर रहने वाला है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। और भगवत गीता में बोला है जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। तो सभी धर्म वाले उस एक निराकार को मानते हैं, सब उसकी अलग अलग तरीके से उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब दुनिया में दुख, अशांति और सारी समस्याएं बढ़ती जाती है, तो भगवान को स्वयं इस सृष्टि में नीचे आकर, प्रैक्टिकल में आकर, जैसे हिंदू लोग मानते हैं कि वो अवतार लेता है। कब लेता है? उसका आने का समय कौन सा है? भगवत गीता में बोला जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, फॉर इरेडिकेटिंग द इविल एंड प्रोटेक्टिंग द गुड वंस, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो क्या अभी ऐसा समय नहीं आया है? महाकुंभ मेले में एज पर न्यूज रिपोर्ट 64 करोड़ इंडियंस उन्होंने विजिट किया आत्मशुद्धि के लिए, ये उनका इंटेंशन था। और आज की डेट में
मानसिकता इतनी नीचे गिरी हुई है कि वहां जो लेडीज स्नान कर रहे हैं गंगा के पानी में, उनके वीडियोस बना के, वो जो कपड़े चेंज कर रहे हैं उसके वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम और दूसरे सोशल साइट्स पे उसको सेल आउट कर रहे हैं। यूपी पुलिस ने 14 केसेस रजिस्टर किए। तो मानसिकता इतनी नीचे गिर गई है, इतनी अति की मानसिकता नीचे गिरती जा रही है सारी चीजों में। 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक आज तक न्यूज चैनल है, उन्होंने एक सर्वे किया। सुधीर चौधरी, द फेमस रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर, उन्होंने एक एपिसोड चलाया था, आप देख सकते हो। उन्होंने बोला कि आज की तारीख में 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2024 10 दिन उन्होंने सर्वे किया। 90% युवाओं ने पोर्नोग्राफी की साइट्स सर्च की है, ब्राउज की है, और सिर्फ 17% लोग हैं जिन्होंने जॉब सर्च की है। आज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सोसाइटी में, और सिर्फ 17% ने इसको ब्राउज किया है। और जो बंगाल में जो दुर्घटना हुई, जो दुष्कर्म हुआ, उसका रेप वीडियो देखने के लिए 30% युवाओं ने ब्राउज किया है। उसका रेप वीडियो देखना है, कैसे रेप हुआ। ये मानसिकता नीचे गिरती जा रही है, राक्षस से और हैवान से भी बदतर मनुष्य बनता जा रहा है। भले इंजीनियरिंग की डिग्री मिल रही है, वकील की, मैनेजमेंट की डिग्री मिल रही है, लेकिन मैं अभी सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गया था, उधर बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया था, उन्होंने लिखा था मिशन, वी आर कमिटेड नॉट ओनली टू प्रोवाइड गुड इंजीनियर्स बट आल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो गुड ह्यूमन बीइंग्स क्या है? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन, द बॉडी मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, और बीइंग मीन्स एनर्जी, आत्मा। तो आज हमें शरीर का नॉलेज है, इस ह्यूमन स्केलेटन का नॉलेज है। ये मांस, फ्लेश, यहाँ दर्द हो रहा है तो ये लगाना है, ये क्रीम लगानी है, ये स्प्रे मारना है, सबकी नॉलेज है, लेकिन हमें आत्मा की नॉलेज नहीं है। उसकी वजह से नैतिकता नीचे गिरती जा रही है, डिग्रेडेशन में जा रही है सोसाइटी। तो ऐसे समय उसको प्रैक्टिकल में भगवान को इस सृष्टि पर अवतरित होके उसको ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में वो अवतरित होता है। भगवत गीता में वो कहा है, मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेके उसके द्वारा इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करता हूँ। अभी युग परिवर्तन का समय है। ये दुनिया 4 युगों में बटी हुई है। 4 युग कौन से पता है आपको? सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज, एंड कल इज आयरन एज। अभी कलयुग, पापी कलयुग और पावन सतयुग, प्योर सतयुग, जिसको राम राज्य भी कहते हैं, यह आइडियल नेशन की कंसेप्ट है, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग पैराडाइज या हेवन बोलते हैं, और जिसको हिंदू लोग स्वर्ग, वैकुंठ, सतयुग या राम राज्य बोलते हैं। तो अभी जो समय है ये युग परिवर्तन का समय है। उसका कारण ये है, रात्रि के बाद दिन आता है, ये साइकिल है, दिन के बाद फिर से रात्रि आती है। तो ये पापी कलयुग की रात्रि है। जब अति हो जाती है, अति कैसे होती है मैं आगे दिखाता हूँ आपको पिक्चर, कि एक्सट्रीम सिचुएशन आ चुकी है अभी वर्ल्ड में, और कैसे एक्सट्रीम सिचुएशन आ चुकी है। तो उस समय ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। मकान जब पुराना बन जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है? मकान टूटा फूटा होता है, उसमें कहीं वाटर लीकेज हो रहा है रूफ से, कहीं दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं, तो मकान का मालिक पहले रिपेयरिंग करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार, 4 बार। बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है तो फाइनल डिसीजन डिमोलिश करेगा। पहले डिमोलिश नहीं करता, पहले नया मकान बांध के तैयार कर देता है, फिर पुराना मकान डिमोलिश करता है। वैसे ही इस सृष्टि का मालिक भगवान। जब रिपेयरिंग के लिए तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, संत मीराबाई, गुरु नानक, आदि शंकराचार्य, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, कई सारों ने आके रिपेयरिंग की। इन्होंने बार रिपेयरिंग करने के बावजूद और हजारों साल से गंगा के पानी में डुबकी लगा रहे भारतवासी, उसके बावजूद दुनिया में पाप बढ़ते चले जा रहे हैं या सब लोग पावन बन गए? उनके आने के बावजूद दुनिया में पाप बढ़ते चले जा रहे। तब जाके शिव को, ईश्वर को स्वयं आकर ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है।
अभी छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिर नहीं है, सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो स्वयं परमात्मा आके सिखा रहे। यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है, वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और परमात्मा सेक्शन जोड़ रहा है, और उसकी वजह से जो डेमन से राक्षस काम क्रोध लोभ मोह आघात ये पांचों भाग रहे। वो जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। द फर्स्ट पिलर इज, दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट पिलर इज क्या लिखा है? सेलिबसी, सेल्फ कंट्रोल, प्यूरिटी ऑफ माइंड, वाचा मतलब वाणी, स्पीच एंड कर्म, ये सेसी है। द सेकंड वन इज प्योर फूड, शुद्ध अन्न, एज अ फूड सो द माइंड। इस बात को कितने लोग मानते हैं? एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपको अगर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी है, आपका इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना है, तो आपको प्योर फूड मतलब क्या? अगर होटल में, रेस्टोरेंट में वड़ा पावच्या गाडीवर मिसळ पाव वो जो मिलता है वहां पे जाके खाना खा रहे, तो बनाने वाला जो शेफ है, बनाने वाला जो व्यक्ति है, उसके मन में अगर हिंसा के विचार चल रहे हैं, किसी का मर्डर करने के विचार चल रहे हैं खाना बनाते वक्त, उसके मन में कोई निगेटिव विचार चल रहे हैं, वेश्यागमन के विचार चल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जब खाना बना रहा है तो उसके आंखों से, उसके हाथों से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। वो वाइब्रेशंस अन्न में उतर रहे और अन्न ग्रहण करने वाले व्यक्ति के अंदर भी वो वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। इसलिए हमारे मूड स्विंग होते हैं। सवेरे उठकर हम बहुत अच्छी विचार रहते, अच्छी चीजें रहते, फिर आते यहाँ पे आते, लोगों से मिलते, बस से ट्रैवल करके आते, फिर हमारे मूड चेंज हो जाते। हमारी आत्मा के 3 स्टेजेस है, सतो, रजो और तमो। 3 गुणों से हमारी माइंड की स्टेट होती है। ये सारा भगवत गीता में उसका मेरा अलग लेक्चर है, शॉर्ट में बताता हूँ। सेकंड वन इज द शुद्ध अन्न। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल उन्नति, डेवलपमेंट, उसके लिए आपको प्योर फूड। घर में अगर माँ खाना बना रही है, अगर शांत चित्त से ईश्वर की याद में बनाया हुआ भोजन प्रसाद जैसा है। मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, पापा माँ को गाली दे रहे हैं और मम्मी गुस्से में है और वो खाना बना रही है, तो वो भोजन आपके माइंड के ऊपर, वो क्रोध के वाइब्रेशन, वो एंग्री वाइब्रेशन, वो सारे आपके माइंड के ऊपर जरूर अफेक्ट करेंगे। उससे आपकी इमोशंस के मूड्स भी वैसे ही बनेंगे। तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन वर्चूज, जो हम अपन से सीखते आए हैं। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 में डिवाइन क्वालिटीज कौन से है, डेमोनिक ट्रेट्स कौन से, गूगल करो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। सत्य, अहिंसा, क्रोध, किसी को डोंट हर्ट एनीबॉडी, मन से, वाचा से, कर्म से, तो ढेर सारी डिवाइन क्वालिटी, उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चौथा है सत्संग, ट्रू कंपनी। आज की डेट में अगर आप मित्र बनाओगे, दोस्त बनाओगे, तो 90% आपको गलत रास्ते पे लेके जाने वाले मिलेंगे, आपको गड्ढे में लेके जाने वाले मिलेंगे। 10% सिर्फ अच्छे मिलेंगे। तो राजयोग जिसको फॉलो करना है, उसको इन 4 पिलर्स को भी लाइफ में फॉलो करना है। ट्रू कंपनी, संग तारे कुसंग बोरे। अगर कुसंग है, बैड कंपनी है, तो हमको बहुत ज्यादा नीचे गिरा देता है। और हमारी उसके बाद राजयोग की अष्ट शक्तियां आत्मा की, जिसके बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूं, हम शॉर्ट में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, आप HR मैनेजर हो, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कोई भी मैनेजर हो, उस समय जब वर्क कल्चर में आप एक ऑफिस ज्वाइन करोगे, तब आपको यह आत्मा की अष्ट शक्तियां काम में आएगी। पहला जो है, हम क्लॉकवाइज इसको बोलेंगे एक आवाज में, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट वन हम सहन करने की शक्ति से चालू करेंगे, फिर से बोलना है सभी को। फर्स्ट, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, सामना करने की शक्ति,
पावर टू फेस चैलेंजेस, सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, टीम वर्क, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, और लास्ट वन पावर टू बैकअप, समेटने की शक्ति। तो शॉर्ट में 2 मिनट में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सहन करने की शक्ति, वो लड़का पेड़ को पत्थर मार रहा है और रिटर्न में पेड़ उसको फल दे रहा है। ये है पावर टू टॉलरेट, पावर ऑफ टॉलरेंस। घर में अगर हम एग्जांपल देखेंगे, आज की डेट में माँ कितना सहन करती है, लेकिन आज अगर जिन लड़कियों की शादी हो जाती है ना, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट, मैं एडवोकेट हूँ इसलिए बता रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन 1 महीने में अभी ये रेट बढ़ चुका है, वापिस आ जाती है ससुराल से। कारण सहन करने की शक्ति कमजोर है। ये सच्चाई है और ये आत्मा की शक्ति है। अगर आपकी आत्म शक्ति, विल पावर या स्पिरिचुअल पावर अगर बढ़ेगी तो सहन करने की शक्ति भी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, इससे आपकी आत्मा की पावर बढ़ेगी तो सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। सेकंड वन, समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। आप में से कोई हॉस्टल में रहता है? सभी रहते हैं। हॉस्टल में ये क्वालिटी सबसे ज्यादा रिक्वायर रहती है, समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। एक रूम में अगर 3 है, 4 है आपके इसमें, हमारे इसमें, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे में हॉस्टल में रहता था, 3 थे। मेरा पार्टनर जो है, रूम पार्टनर, वो बकेट छुपा के रखता था नहाने वाली। उसकी एटीट्यूड ऐसी थी, रिजर्व कैटेगरी था वो कभी, और मेरा खुला खेल फरुखाबादी, खुला रहता था कि बकेट ओपन है, कोई भी लेके जाए कभी भी। तो पावर टू एडजस्ट, अलग अलग संस्कारों के बच्चे, फ्रेंड्स वहां मिलेंगे और आपको एडजस्ट करना है, उनके इमोशंस, उनके जो भी अपने अपने माइंड के अलग अलग क्वालिटीज है, उससे एडजस्ट करना है। परखने की शक्ति, जो चोरी होता है वो हीरा परखता है कि असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है। आप जब वर्क कल्चर में जाओगे तो आपको कोई ऐसे चाटुकार भी मिलेंगे जो आपके अंडर सबऑर्डिनेट से काम करने वाले हैं। कोई चाटुकार, साइकोपैथ्स, मतलब आपको परखना आना चाहिए कि कौन इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है और कौन इस काम करने के लायक नहीं है। मैनेजमेंट स्किल्स, तो डिसीजन मेकिंग पावर, ये लीडरशिप स्किल्स है। जो लीडर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, जो मैनेजर होता है, उसको बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उसी के आधार से बाकी सारा यूनिट वर्क करता है। और डिसीजन मेकिंग पावर हमारी तभी स्ट्रांग बनेगी जब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर ज्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट वन इज द सामना करने की शक्ति। ये बच्चा है, इसके पेरेंट्स एक्सीडेंटल डेथ हो गई, बचपन से ही पेरेंट्स नहीं है और पूरी लाइफ में उसके स्ट्रगल है। ये सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस चैलेंजेस। आज हमारे लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि बीमारियां आती है अलग अलग, और इससे हम सफर करते हैं। या तो कोई लव फेल्यूर्स है ना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं, कौन से प्रॉब्लम चलते रहते हैं। तो परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति। उसके बाद टीम वर्क, सहयोग करने की शक्ति। टीम वर्क बहुत नेसेसरी है। आज जो फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही है या जॉइंट फैमिलीज ज्यादा दिखाई दे रही है। पहले सनातन धर्म के ऐसे ऐसे परिवार होते थे कि 70-70, 80-80 लोग एक घर में रहते थे, एक चूल्हे पे सबका खाना बनता था, परिवार का एक मुखिया होता था, उसकी बात कोई क्रॉस नहीं करता था। आज परिवार जो है वो टूटते चले जा रहे हैं और सहयोग करने की शक्ति जो है वो खत्म होती जा रही है, सहन करने की शक्ति खत्म होती जा रही है। उसके बाद विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। टॉर्टोइस, जो कछुआ होता है, वो क्या करता है, अपने लिम्स को विड्रॉ कर लेता है जब जरूरत नहीं तब। अभी समझो एक जोक किया मैंने और आप हंसते रह गए, लेक्चर आगे जा रहा है, अभी मैं नई चीजें बता रहा हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Everybody continues in its state of rest or of uniform motion unless and until acted upon by some external agency. अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो
उस चीज से फुल स्टॉप लगा के हमको फिर से दूसरी एक्टिविटी में जाना है। ये माइंड कंट्रोलिंग पावर से आता है। तो टॉर्टॉइज जब जरूरत नहीं है अपनी लिंक्स को विड्रॉ कर लेता है, ड्रॉ कर लेता है। वैसे ही जहां जरूरत नहीं है वहां अपने आप को हमें कंट्रोल करना नहीं है। और नेक्स्ट वन है पावर टू बैकअप, समेटने की शक्ति। ये आत्मा की अष्ट शक्ति है, एक पावर्स ऑफ द सोल। जब आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी तो ये एक पावर्स भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। मैंने आपको वर्ल्ड साइकिल बताया था, दिस इज वर्ल्ड साइकिल, दिस रिपीट्स इटसेल्फ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, एंड दिस लास्ट पीरियड फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज संगम युग, कन्फ्लुएंस एज। ये 100 का पीरियड है जिसमें कलयुग से सतयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और शिव स्वयं आकर ब्रह्मा द्वारा क्रिएशन ऑफ द न्यू यूनिवर्स और शंकर द्वारा डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, और जो न्यू वर्ल्ड स्टार्ट हो जाएगा उसका सस्टेनेंस विष्णु के द्वारा। तो आज मॉडर्न साइंस की वजह से बहुत डेवलपमेंट हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन साथ में एक चीज उन्होंने इन्वेंट की, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब। 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स सब कुछ अवेलेबल है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा कंट्री, उसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? किम जोंग। वो सारी दुनिया को धमकी देता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर लूंगा। अमेरिका जैसी महासत्ता को धमकी दे रहा है। रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है 2 साल से, सारी दुनिया इंटरनेशनल वॉर में है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान के बीच में वॉर चल रही थी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया है। उसके बाद भारत, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कभी भी इनके बीच में वॉर चालू हो सकती है। तो सारी दुनिया अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे है या नहीं है? तो मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। एक है साइंस की पावर और दूसरी है साइलेंस की पावर। और साइलेंस की पावर आती है स्पिरिचुअलिटी से, सेल्फ रियलाइजेशन से। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो न्यूक्लियर वॉर होगा 100%, और न्यूक्लियर वॉर होगा तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और उसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जाएगा, और उसकी वजह से बड़े बड़े जो आइलैंड्स है वो समुद्र के गर्त में चले जाएंगे। दे विल सबमर्ज इन द वाटर। अमेरिका इज आल्सो आइलैंड, यूरोप इज आल्सो आइलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे, अफ्रीका, चाइना, रशिया, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। उत्तर भारत जो हिमालय से कवर्ड धरती है, सिर्फ भारत अविनाशी खंड है वो बचेगा। आने वाले समय में 3 पॉसिबिलिटीज है। द फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर वॉर, सेकंड वन इज द नेचुरल कैलेमिटीज, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और थर्ड वन इज हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो खून की नदियां बही थी, और आज की तारीख में आंखें खुली रख के आप रोज के न्यूज रिपोर्ट्स, मीडिया, सारी चीजें देखोगे तो धर्मों के बीच में झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि रियल स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके हैं। जो आज की डेट में मैं सनातनी हूं बोल रहा है, क्या उसको भगवत गीता का नॉलेज है? पूछिए, कुछ नॉलेज नहीं है। बोलने के लिए सनातनी है, बोलने के लिए मैं फलाना धर्म का हूं। धर्म के ऊपर जो बिलीफ है, जो फेथ है, वो रियल स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी अध्यात्म वायलेंस करना नहीं सिखाता। क्या गौतम बुद्ध ने वायलेंस करना सिखाया? संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई, किसी ने भी, तुलसीदास, कबीरदास ने वायलेंस करना सिखाया? नहीं सिखाया। कोई भी धर्म, गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, किसी भी धर्म वालों ने, संत महात्माओं ने वायलेंस करना नहीं सिखाया। लेकिन आज हमारा जो समाज है, हिंसा, आतंकवाद, इसके पूरी तरीके से भाव में आ रहा है। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो एंटायर वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है।
बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ता है, नॉस्ट्राडेमस का नाम किसी ने सुना है? भविष्यवाणी जिसकी पॉपुलर है बहुत, गूगल कीजिए नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुर्बन, ये फेमस प्रेडिक्टर्स है। भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, भविष्य मालिका, इनकी जो प्रोफेसीज है इसमें एक कॉमन प्रोफेसी है, कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा और ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देगा और ऐसा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इस दुनिया के अंदर लाएगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, अफ्रीका, ये उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। वो साइलेंस की पावर और ऐसी वाइब्रेशन की पावर और ऐसी स्पिरिचुअल पावर लाएगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स सरप्राइज कर जाएंगे उसके नॉलेज के आगे। तो आज दुनिया की ये हालत है कि हम सारी कुंभकर्ण निद्रा में सो रहे, आज हमें पता नहीं है। द सुप्रीम पावर गॉड has incarnated on the earth in an ordinary human being, he is giving the spiritual knowledge, और हम अज्ञान की निद्रा में सो रहे। आज दुनिया की हालत ऐसी है जैसे किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वो अंतिम सांसें गिन रहा है, वैसे आज सारी दुनिया की हालत ये, न्यूक्लियर वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज और सिविल वॉर्स, रिलीजन्स के बीच में बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, विश्व शांति सम्मेलन, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है? सारे प्रयास करने के बावजूद आज देशों में झगड़े चल रहे, राज्यों के बीच में झगड़े चल रहे, जाति के बीच में झगड़े चल रहे, धर्मों के बीच में झगड़े चल रहे। तो ये समय है सेल्फ रियलाइजेशन का, स्पिरिचुअल नॉलेज देने का। जब दुनिया में अशांति बढ़ती चली जाएगी आगे आने वाले समय में भी, उस समय अगर हमारे पास स्पिरिचुअल पावर रहेगी तो हम फिर भी स्टेबल रहेंगे। कोरोना आया तो कितने घबरा गए थे, फियर, और कितनी समस्या आ गई। मैक्सिमम लोगों ने हार्ट अटैक से अपने प्राण त्यागे, कोरोना की बीमारी से नहीं त्यागे, डर से। तो ये युग परिवर्तन का समय है, पापी कलयुग से पावन सतयुग का, और ईश्वर इस धरती पे आए। और स्पिरिचुअल नॉलेज आप अपने लाइफ में लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। 7 डेज का हमारा कोर्स होता है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये नॉलेज सभी जगह स्प्रेड की जा रही है। तो आप इस नॉलेज को लीजिए घर बैठे, और जो मन और बुद्धि उसका जो फूड है वो प्रॉपर फूड चॉइस कीजिए। आप गलत चीजें जो परोसी जा रही है इंटरनेट मीडिया में, उसको मत स्वीकार कीजिए, आपकी डिसीजन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। On behalf of Arihant Institute of Business Management, I would like to express our heartfelt gratitude to Advocate Mr. PBK Anmol Bhai sir for such an inspiring and insightful session. Your journey and expertise have truly motivated us, and the strategies you shared will be invaluable as we move forward. Thank you for taking the time to guide us and share your knowledge. Let us all give a big round of applause for Advocate Mr.